بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہائیبرڈ ماڈل کی منظوری دے دی۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم 2026 کے ٹی20 ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہیں جائے گی۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 کے مقابلے پاکستان اور دبئی میں کھیلے جائیں گے۔ پی سی بی اور پی سی بی آئی بھارت کے مقابلے دبئی میں کرانے پر رضامند ہے، جبکہ ٹی20 ورلڈ کپ 2026 میں پاکستان اور بھارت کا مقابلہ کولمبو میں ہوگا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ پی سی بی اس معاہدے کے لیے کوئی مالی معاوضہ وصول نہیں کرے گا۔ چیئرمین ٹرافی کے مقابلے پاکستان میں 3 وینیوز اور بھارت کے مقابلے دبئی میں ہوں گے۔ پاکستان کو 2027 کے آئی سی سی ویمنز ٹورنامنٹ کی میزبانی بھی ملے گی۔ صدر مملکت نے پاکستان مدرسہ ایجوکیشن بورڈ آرڈیننس 2001 اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹوری ٹرسٹ ایکٹ 2020 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ایکٹس کی موجودگی میں نئی قانون سازی ممکن نہیں ہو سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1806 اسلام آباد کی حدود میں نافذ العمل ہے۔ نئی ترمیم کا اطلاق محض اسلام آباد میں ہونے کے حوالے سے کوئی شک بل شامل نہیں ہے۔ صدر مملکت نے اعتراض کیا کہ مدارس کو بحثیت سوسائٹی رجسٹر کرانے سے ان کا تعلیم کے علاوہ استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ نئے بل کے مختلف شقوں میں بھی مدرسے کی تعریف میں تصادم موجود ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت کے شعبے میں تربیت فراہم کر رہے ہیں۔ ترکیہ کے دارالحکومت استنبول میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا اسٹارٹ قوم سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان کے نوجوان محنتی اور باصلاحیت ہیں۔ پاکستان کی آبادی میں زیادہ تر تعداد نوجوانوں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں مصنوعی ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت کو مثبت طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا بھر میں سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ ہم سوشل میڈیا پر کشمیری نوجوان برہان وانی کا نام نہیں لکھ سکتے۔ عطا طارق کا کہنا تھا کہ غزہ میں جاری قتل عام کے حوالے سے بات چیت کرنا ممنوع سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں 111 ملین انٹرنیٹ صارفین ہیں، جبکہ موسمیاتی تبدیلیوں پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیاں دنیا بھر کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات کا مزید کہنا تھا کہ اسٹارٹ کام سمٹ میں شرکت میرے لیے باعث اعزاز ہے۔ سینیٹ سے نیشنل فرینزک ایجنسی بل 2024 متفقہ طور پر منظور ہو گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارق کی جانب سے پیش کردہ بل پہ ارکان سینیٹ کی متعدد ترامیم بھی منظور کی گئی ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارق نے سینیٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی دوسری شہریت کا حامل شخص نیشنل فرینزک ایجنسی کا ڈی جی مقرر نہیں کیا جا سکے گا۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر کو 15 سی سی گاڑی اور 400 لیٹر پیٹرول دیا جاتا ہے۔ 95% وزراء تنخواہ نہیں لے رہے۔ بجلی گیس کا بل وزراء خود دیتے ہیں، انہیں سرکاری مراعات نہیں دی جاتی۔ وزیر قانون نے مزید بتایا کہ اس تنخواہ میں اضافے کی بات ہو تو پارلیمنٹ خود کہتی ہے کہ معاشی تنگی ہے۔ مسلم لیگ نون کا دفتر جلانے کے کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر، میاں اسلم اقبال، مراد سعید اور دیگر کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔
लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने से मुतालिक पुलिस की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं हमाद अजहर, मुराद सईद, मियां असलम इकबाल, वासिक फ़यूम, जुबैर खान और दिगर को इश्तिहारी करार देते हुए मुल्जिमान की दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है। पुलिस ने इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान गिरफ्तारी के खौफ से रूपोश है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि आज सिर्फ फौजी अदालतें वाला केस ही सुना जाएगा। समाअत के आगाज पर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस रोस्टों पर आ गए और उन्होंने दलाइल दिए। जस्टिस जमाल मुंतखी ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से कहा कि इस नुक्ते पर दलाइल दें ताकि आर्मी एक्ट कलदम दफात आइन के मुताबिक है। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर फर्द को इसके जुमरे में लाया जा सकता है? इस पहलू को भी मद्देनजर रखें। आर्मी एक्ट 1973 के आइन से पहले बना था। अब तक 13 IPPs के साथ मुआहिदे मंसूख किए जा चुके हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में सालाना 2000 अरब अदा किए जा रहे थे। वफाकी हुकूमत ने मजीद 6 IPPs के साथ बिजली खरीदने के मुआहिदे खत्म करने का फैसला कर लिया, जिससे 3000 अरब रुपए की बचत होगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक महंगी बिजली पैदा करने वाले IPPs के साथ मुआहिदों में एक और पेशरफ्त हुई है और वफाकी हुकूमत ने मजीद 6 IPPs के साथ बिजली खरीदने के मुआहिदे खत्म करने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि 6 IPPs के साथ 2396 मेगावाट के मुआहिदे खत्म करने से मजीद 300 अरब रुपए की बचत का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक गुल अहमद एनर्जी के साथ 136 मेगावाट का मुआहिदा खत्म करने का फैसला किया गया है। इसी तरह कैपको पावर प्रोजेक्ट के 1638 और लिबर्टी पावर के 200 मेगावाट के मुआहिदे खत्म किए जाएंगे। हुकूमती ज़राए का कहना है कि मजीद IPPs के साथ मुआहिदे खत्म करने से बिजली टैरिफ में कमी होगी। हवावे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हवावे को पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आला पंजाब ने शंघाई के डिस्ट्रिक्ट लोंग कोंग में हवावे टेक्नोलॉजीज का दौरा किया, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मरियम नवाज शरीफ ने हवावे टेक्नोलॉजीज के दौरे के दौरान मुख्तलिफ शोबे देखे। इस मौका पर वज़ीर आला मरियम नवाज ने हवावे गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर वोंग जीन डोंग से मुलाकात की। हवावे का सदर मिस्टर वोंग जीन डोंग ने वज़ीर आला मरियम नवाज और वक्त को तफसीली ब्रीफिंग दी। मुलाकात के दौरान लाहौर को मॉडर्न डिजिटल सिटी बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात पर गुफ्तगू हुई। ई-कॉमर्स, इकोसिस्टम प्रोडक्शन, हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट की डिजिटाइजेशन से मुतल्लिक अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा ने कहा है कि मुज़ाकरात की गाइडलाइंस बानी पीटीआई ही देंगे। माइनस इमरान खान मुज़ाकरात नहीं होंगे। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा का कहना था कि अभी तक हुकूमत से मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हुई। पार्टी मीटिंग के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत चल रही है। जो भी पेशरफ्त होगी आज शाम को पता लग जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से हमारी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर कोई मुज़ाकरात करना चाहे तो ठीक है, ना करना चाहे तो उनकी मर्जी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का पैगाम भेजा तो हमारी तरफ से इनकार नहीं होगा। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है लेकिन मुज़ाकरात का पैगाम नहीं भेजा। मुज़ाकरात का पैगाम मिला तो हमारी तरफ से इनकार नहीं होगा। फाइनल कॉल से पहले तहरीक इंसाफ से राबिता किया गया था। बानी पीटीआई की रिहाई की बात नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ऑफर की है कि सद के दिल से मुआसरत करें। 9 मई को किन की तनसीबात और घर पर हमला किया गया, ये 9 मई वाक़यात की मजम्मत क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कहते कि इनसे गलती हुई। उनका कहना था ये कहना 9 मई को हम नहीं थे, वो खुद ही थे, ये तो और तलखी बढ़ाने की बात है। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का सनअती तरक्की के लिए चीन के ताआवुन पर इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद में गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने चीन के सफारतखाने का दौरा किया। चीन के सफीर और दीगर सफारती अमले ने खैर मकदम किया। इस मौका पर गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने चीनी सफीर से मुलाकात की जिसमें बाहमी ताआवुन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। सिंध में सनअती जोन्स में चीनी फैक्ट्रियों के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया गया। दौरान मुलाकात कराची सर्कल रेलवे मनसूबे में चीन की वसी ताआवुन पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली के लिए चीन की सरमायाकारी पर बातचीत की गई। सिंध में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सोलर इंडस्ट्री के मनसूबों पर चीनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल भी हुआ। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि हुकूमती कर्ज को शरई उसूलों पर मुंतकिल करना बड़ा चैलेंज है। इस्लामी डेवलपमेंट बैंक और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दूसरी इस्लामी कैपिटल मार्केट कॉन्फ्रेंस और एक्सपो कराची के मकामी होटल में आगाज़ हुआ। कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से वजारत ख़जाना, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन SECP, MDC, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग बोर्ड के चेयरमैन ने खिताबात किए। कॉन्फ्रेंस के खिताब में वज़ीर ख़जाना महमूद औरंगज़ेब का कहना था कि इस्लामी मालियाती निज़ाम पर मुंतकली के सफ़र में सबको मिलकर चलना है। उन्होंने कहा कि शरई उसूलों पर मुरतब प्रोडक्ट से सारिफों का इत्मीनान हासिल करना है। हुकूमत को सूद के जरिए सूद से पाक कर्ज मिल सकता है। शाम का दिफाई निज़ाम तबाह करने के बाद इसराइल ने ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। इसराइली अखबार के मुताबिक इसराइली फौजी हुकाम का कहना है कि मशरक़ी वस्ता में ईरान के हामी ग्रुपों के कमज़ोर होने हुए और शाम में असद हुकूमत के खात्मे के बाद इसराइली फ़ज़ाइया ईरान की जोहरी तनसीबात के खिलाफ मुमकिना हमलों के लिए अपनी तैयारी जारी रखे हुए है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने हमलों में शाम के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को बुरी तरह निशाना बनाया। इसराइली फौज का ख्याल है कि अब
ईरान के जोहरी मकामात पर हमला करने का मौका है, क्योंकि ईरान अपने जोहरी प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ा सकता है और एक बम तैयार कर सकता है। पाकिस्तान के ऑलराउंडर अमाद वसीम ने एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अमाद वसीम ने सोशल मीडिया पर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया। इस हवाले से अमाद वसीम का कहना था कि बड़ी सोच विचार के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एजाज़ है। डोमेस्टिक और फ्रेंचाइज क्रिकेट में अपना सफ़र जारी रखूंगा। बात में रहे कि अमाद वसीम ने T20 वर्ल्ड कप से कबल रिटायरमेंट वापस ली थी। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने कंसर्ट में खातून मदाह की आंखों में आंसू देकर इसे चुप करवाने के लिए खूबसूरत अंदाज में गुनगुनाकर मदाह को दिल जीत लिए। आतिफ असलम के एक हालिया कंसर्ट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि इसमें गुलकार किस तरह एक खातून मदाह को रोने से मना कर रहे हैं। कंसर्ट गुनगुनाते हुए आतिफ असलम मदाह के करीब आए और देखा कि एक लड़की इन्हें देखते हुए रो रही है, जिस पर गुलकार ने लड़की से सवाल किया, रो क्यों रही हो, रोना बंद करो, मुस्कुराओ।